Hello students, today we learnt about statistics for economics. In modern age, statistical information and methods are widely used in many fields like business, engineering, social, physical and natural sciences. आज स्टैटिस्टिक्स का या सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे व्यापार, इंजीनियरिंग, सामाजिक, शारीरिक, प्राकृतिक विज्ञान आदि में. टुडे एवरी वाइज सिटीजन टेकन हिज डिसीजंस on the basis of statistical knowledge. It has become an indispensable science for every field of human life. Statistics makes the subject of economic more meaningful and reliable. सांख्यिकी ने अर्थशास्त्र को और भी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय बना दिया है. Because statistics is the science of numbers that makes the statement of economy comparable and comprehensive. This subject has been developed as a science of statistical data as well as science of statistical methods. हम स्टैटिक्स की परिभाषा को दो रूपों में समझ सकते हैं, स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस एंड स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस. स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस, statistics means numerical information or quantitative statements of facts प्रोफेसर बावले ने स्टैटिक्स के प्लूरल सेंस में जो परिभाषा दी, उनके अनुसार न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स in any department of inquiry placed in relation to each other. प्रोफेसर यूल एंड कैंडल ने भी स्टैटिक्स की परिभाषा दी है. उन्होंने कहा कि बाय स्टैटिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू अ marked extent by multiplicity of causes. प्लूरल सेंस में इसकी विशेषताओं को हम या इसके फीचर्स को इस रूप से में देख सकते हैं कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, जो भी डिफिनेशन से क्लियर हुआ, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ causes, numerically expressed and enumerated, estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner, collected for predetermined purpose and placed in relation to each other. एक संक्षिप्त रूप में इसको इस अर्थ को कह सकते हैं कि इन प्लूरल सेंस statistics means numerical information capable of statistical analysis in processes. Its characteristics are aggregates of facts numerically expressed, collected in systematic manner for a predetermined purpose and presented in a कंपैरेटिव फॉर्म. इसी प्रकार से स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस में हम कह सकते हैं कि इन सिंगुलर सेंस स्टैटिक्स इज ए बॉडी ऑफ मेथड्स
concerning collection, presentation, analysis, and interpretation of data. In this sense, statistics is considered to be a science of statistical method. Statistics has following types of method. Number 1, method for collection of data. Number 2, methods for the presentation of data. Number 3, methods concerning analysis of data. Number 4, methods concerning interpretation of data. In this sense, statistics become applied statistics that can be used for forming rules and policies. बार बार डाटा शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए डाटा क्या है ये भी जानो कि डाटा is a quantitative information used as a basic raw material for further statistical analysis. ये डाटा की परिभाषा है। इन सब रूपों में को देखते हुए स्टैटिस्टिक्स की या सांख्यिकी आधुनिक जो परिभाषा बनी, मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, in latest sense, statistics are taken to be a science that provides numerical information which is capable of analysis and interpretation. It ultimately helps in the formulation of principles and policies. It makes every social and physical science more truthful and data-based, hence it helps in raising reliability of every science. स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी जो है, वह विश्वसनीयता को बनाने में सहयोग देती है। क्यों? क्योंकि उसके डाटा के आधार पर ही, आंकड़े के आधार पर ही हम इसको ठीक ढंग से, अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं। फीचर ऑफ डिफिनेशन, वही सारी चीजें। नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल आर्ट, यानी सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। नंबर 3, इट डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। दो चीजें जानो कि सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में अंतर क्या है। इन प्लूरल सेंस इट डील्स विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यह न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या अंकीय सूचनाओं के आधारित है। बट इन सिंगुलर सेंस इट इज ए बॉडी ऑफ वेरियस मेथड एंड टूल्स। एक अंतर ये है। दूसरा अंतर है, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स इज डिस्क्रिप्टिव, whereas in singular sense it is a applied science. तीसरा अंतर है, in plural sense statistics is the collection of aggregates of fact, whereas in singular sense it tried to react at creation conciliation of the on the basis of the analysis of collected facts. कार्य क्या है सांख्यिकी के? फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन को हम 6 बिंदुओं में कह सकते हैं। नंबर 1, इट प्रेजेंट डाटा इन अ डेफिनिट फॉर्म, एक निश्चित रूप में ये डाटा को प्रस्तुत करता है। नंबर 2, फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस, तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। फार्मूलेशन and testing of hypothesis. Number 4, helpful in prediction. Number 5, enlarges individual experience and knowledge.
और नंबर 6 फार्मिंग पॉलिसीज, नीतियों का निर्धारण करती है। स्कोप क्या है स्टैटिक्स का? स्कोप ऑफ स्टैटिक्स मीन्स प्रोविंसेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो क्या है? नंबर 1 नेचर ऑफ स्टैटिक्स, नंबर 2 सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स और नंबर 3 लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिक्स, इसमें हम स्टैटिक्स को किन रूपों में जाते हैं? जो अभी परिभाषा थी कि स्टैटिक्स इज साइंस एंड आर्ट, यानी स्टैटिक्स जो है वो विज्ञान और कला दोनों है। इस संबंध में है कि द स्टैटिक्स इज नॉट ओनली अ थ्योरेटिकल साइंस, इट हैज द प्रैक्टिकल अप्लाइड आल्सो, देयरफॉर स्टैटिक्स इज बोथ a science as well as art। यह विज्ञान और कला दोनों है। कला क्यों है? क्योंकि प्रस्तुतिकरण में महत्वपूर्ण है, और विज्ञान इसलिए है क्योंकि ट्रुथ पर आधारित है, प्रैक्टिस पर आधारित है, गणना पर आधारित है, फार्मूले पर आधारित है। इस तरह से स्टैटिक्स के 2 सब्जेक्ट मैटर हुए, यानी स्टैटिकल मेथड और अप्लाइड मेथड। अंडर स्टैटिकल मेथड्स we study all those methods which are related to collection, presentation, organization, analysis and interpretation of data। and applied statistics में हम अध्ययन करते हैं applied statistics deals with the application of statistical methods to specific problems। The applied statistics can be classified into 2 parts, descriptive and scientific। Descriptive applied statistics are concerned with data which are known and which naturally related to the present or the past। जो वर्तमान या भूत से संबंधित होता है, ऐसे आंकड़ों से संबंधित है। Scientific applied statistics deals with the formulation of physical and physiological laws on the basis of quantitative data collected to descriptive process by the use of appropriate statistical methods। 2 चीजें और समझना है कि स्टैटिक्स की लिमिटेशन क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, इसको 6 बिंदुओं में समझो। स्टैटिक्स डज नॉट बी डील विद इंडिविजुअल फैक्ट्स। नंबर 2 स्टैटिक्स डील्स विद क्वांटिटेटिव डाटा ओनली। नंबर 3 misuse of statistics। Number 4 statistical conclusions are true only on an average। Number 5 all statistics are not given the same importance। Number 6 based on estimates and approximation। यह है अनुमान और संभावनाओं पर आधारित है। महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक थ्योरीज। नंबर 2 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नंबर 3 इकोनॉमिक पॉलिसी फार्मूलेशन। नंबर 4 बजटिंग। नंबर 5 प्रिपेयरिंग नेशनल इनकम अकाउंट्स और नंबर 6 इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में और शास्त्र के रूप में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, आवश्यकता है। तो ये जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन कारण कुछ डिस्ट्रस्ट हैं, लोग इस पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? कुछ कारण से हैं, उनको समझिए कि डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स, व्हेन स्टैटिक्स लैक्स कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स रीडर्स, it is said to have become distrustful। It is considered
to be a liar of first order. Distrust of statistics primarily comes due to misuse of data it collects. The tools of statistics should be used by some experienced persons or inexperienced persons make it difficult. यानी ऐसे लोग जो को इसके बारे में अनुभव नहीं है, ऐसे लोग जब इसका प्रयोग करते हैं तो ठीक ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण नहीं होता, जिससे ये अविश्वासफुल या अविश्वसनीय बन जाता है। रीजन फॉर डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारण क्या हैं? ये 3 कारण हैं। नंबर 1, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एंट्री ऑफ बेसिस बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। नंबर 2, inappropriate comparisons made by the interpreter. और नंबर 3, conclusion based on inadequate data or inadequate sample। ये कुछ प्रश्न थे, इसे आप